Listen, two sets given, A and B, A and B, that is f of x, this is a relation from A to B. The elements of the set A are 1, 2, 3, 4. Elements of the set B, 6, 7, 8, 9, 10. One is mapping to 8 relation. 1 किसके साथ रिलेशन है? 8 के साथ. 2 किसके साथ रिलेशन है? 9 के साथ. और 3 किसके साथ रिलेशन है? 6 के साथ. 4 किसके साथ रिलेशन है? 7 के साथ. It's also called mapping. It is also called mapping, relation or mapping. When x equal to 1, y is equal to 8. When x equal to 2, y is equal to 9. When x equal to 3, y is equal to, x equal to 4, y is equal to 7. और इन फंक्शन की फॉर्म है f of 1 is equal to 8, f of 2 is equal to 9, f of 3 is equal to 6, f of 4 is equal to 7. ये क्लियर है? Okay. Then set इस रिलेशन दूसरे फॉर्म में बताओ, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में बताओ, ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म बताओ. ये रिलेशन हाउ टू राइट इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर. फर्स्ट one relation, the given relation is set 1, 8, 2, 9, 3, 6 and 4, 7. This is the ordered pair. जो लास्ट क्लास में जो किया तुमने है ना, ordered pair. This is the ordered pair. It's a given relation. It's a given relation. In this relation, what are the x coordinates? 1, 2, 3, 4. The x coordinate of the given relation is called domain. Is called domain. The x coordinate of the given relation is called. So domain of the given function, short form है, पूरा लिख दो. Domain is equal to set, इसका सबका x coordinate लिख देना. What are the x coordinate here? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. जे का कोई भी क्वेश्चन देखो सबका इसका रिलेट होगा, सब चैप्टर इसी का कनेक्टेड होगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, तो मैं पूरा डिटेल में बता रहे हैं. डोमेन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4. ये क्लियर है? एंड द y coordinate of the given relation is called range. So range is equal to, what is the y coordinate? 8, 9, 6, 7. तो डोमेन रेंज का मीनिंग क्लियर है सबको? इतना इजी नहीं है फन करने का, ये तो सिंपल गिवन है इसलिए आपको इजी हो गया. द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन रिलेशन is called, and the y coordinate of the given relation is called range. And all the elements of the set B, 6, 7, 8, 9, 10, all the elements of the set B, not a range, all the elements of the set B is called codomain. Is called codomain. So what is codomain here? Codomain is equal to 6, 7, 8, 9, 10. Range of codomain is equal नहीं है, equal भी हो सकता है, ठीक है. Range is always a subset of codomain. Range is always, ध्यान से, very important property.
range is always a subset of the codomain. Always a subset of the, check कर सकते हैं 8967 है इसमें, so range is a subset of the codomain, and all the elements of the range present in the codomain. So range is always a subset of codomain. What is range? The y coordinate of the given relation. And what is codomain? The codomain is all the elements of the set B. Set B means अगर A to B आए तो B वाला एलिमेंट, अगर B to A दिया तो A वाला एलिमेंट codomain होगा. So relation is where to where, ये चेक करते हैं. The relation is from where to where. That is very important. Either A to B given it, so B elements are called codomain, and the y coordinate of the given elements are called, the y coordinate of the given elements are called range. Is called range. If a graph is given, if देखो अभी मैं graphical approach कर रहा हूँ, इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने के स्टार्ट करेंगे, ठीक है. If a graph is given, from that graph, the method to find the domain and the range. To find the domain, draw a vertical span of lines. If the vertical span of lines cut the graph, that is the domain, and draw the horizontal span of line, that gives range. एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्लियर है? ये सिंपल मेथड है. अगर एक कोऑर्डिनेट्स गिवन है तब फाइंड करने का तरीका है, बट एग्जाम में इस तरह से कभी भी क्वेश्चन नहीं आ सकता. तो ओनली टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. अब हम एक एग्जाम्पल देखो, ग्राफिकल मेथड से कैसे करना, ग्राफिकल अप्रोच से कैसे फाइंड करना. वेरी इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल अप्रोच. सेम एक और चैप्टर आएगा आपका लीनियर इनइक्वालिटी, उसमें भी ये काम आएगा, ठीक है. दोनों में बताओ. लिसन, एक सिंपल ग्राफ है, ठीक है. साइन एक्स का देख, y इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ. ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, अभी ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं एग्जाम में. मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम जो करना है, एक्स वाई, एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा 0, फिर आएगा 30 डिग्री. जब लास्ट में हम डिग्री पे यूज नहीं करते, रेडियन यूज करते हैं. एक तो अभी डिग्री छोड़ दो, ठीक है. और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ानी है ना, तो डिग्री में लिख देना डिग्री. तो अभी 10th क्लास के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहा है, ठीक है. 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. साइन 0, साइन 30, 1/2, साइन 45, साइन 60, ठीक है. 90 तक ही बात. ये साइकिल रिपीट होते हैं साइन में, ठीक है. सॉरी, प्लस √3/2, माइनस नहीं है, प्लस √3/2, ठीक है. ये ग्राफ रिपीट होता है. देखो हाउ ये साइकिल होता है, ठीक है. ये कौन सा डिग्री है? सी. मैं इधर पुट कर दिया 1, इधर पुट कर दिया माइनस, इधर आएगा 90. मेन पुट कर रहा है, ठीक है. 90, 180,
270, 360. साइन 0 कितने? 0. साइन 90, साइन 90, ठीक है. फिर साइन 180, 0. क्यों? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना, उसमें पूरा है एंगल, पूरा एंगल, कोई भी एंगल दिया तो भी फाइंड कर सकते हो. इसके लिए ट्रिक है, अभी नहीं बता रहा, ट्रिग्नोमेट्री में बताओ, अभी तो याद कर लो. साइन 180 0 है, साइन 270 -1 है, साइन 360 0 है. ये रिपीट होगा, ठीक है, ये ग्राफ ये रिपीट हो, इतना भी रिपीट होता, इधर भी रिपीट होता. ये साइन का ग्राफ होता है, इन्फिनिट तक रिपीट होता है. अभी क्या, हाउ टू फाइंड द डोमेन इफ ए ग्राफ इज गिवन? हाउ टू फाइंड द डोमेन? ड्रॉ वर्टिकल स्पैन ऑफ लाइंस. वर्टिकल मीन्स इस तरह से लाइन ड्रॉ करना, ड्रॉ करके दिखाना नहीं है आपको, इमेजिन कर दो. देखो ये दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्पैन ऑफ लाइन. अगर मैं वर्टिकल स्पैन ऑफ लाइन में ड्रॉ किया तो ये ग्राफ में कट कर रहे हैं, नहीं कर रहे? कट तो कर रहे हैं, देखो हर पॉइंट में कट कर रहे हैं. सो ये पूरा क्या चीज आएगा? डोमेन. ये पूरा क्या आएगा? डोमेन. सो अगर नंबर लाइन का पूरा नंबर आ रहा है, इज कॉल्ड रियल नंबर आर. दैट इज कॉल्ड माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक. इधर से माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर. Minus infinity to infinity, that is also we can say what? R. That is also we can say R. So what is the domain of sin x? R. What is domain? R. Sin x का domain पूछा तो what is answer? All real number. All real number. Reason clear है सबको? मैं देखो ग्राफ ड्रॉ कर दिया, इधर टच होगा ना, ये लाइन ग्राफ में टच होगा, इसको मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हार है इसमें, और टच हो रहा है, टच कर रहे हैं, तो पूरा टच करेगा ना, कोई भी ड्रॉ किया तो सर ना. ओके, अभी रेंज फाइंड करने के लिए ड्रॉ ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन. देखो मैं इधर हॉरिजॉन्टल लाइन टच ड्रॉ किया, टच होगा ग्राफ में? टच होगा? किधर से टच होगा? स्टार्ट -1 से टच होगा, देखो टच हो रहा है, टच हो रहा है, किधर तक एंड हो रहा है? इधर 1 तक, इसको ऊपर आ रहा है. सो इसका रेंज क्या होगा? रेंज इज इक्वल टू -1 to 1. इस वाला ब्रैकेट का मीनिंग तो बता दिया मैं आपको, याद है ना? ठीक है, ओपन और क्लोज्ड है. क्लोज्ड ब्रैकेट में ऑल द नंबर्स आर इंक्लूडेड between these two, and these two numbers are also included. So by using graph, what is the method to find the domain and range? Clear hai? Draw the vertical span of line, domain, and the horizontal span of line, that is range. That is called range. That is called range. Suppose a graph given है, listen, आप लोग बताना चाहिए आंसर. ये ग्राफ ऊपर तक जा रहा है, ठीक है, इनफिनिट तक जा रहा है. What is the domain? What is a domain? From this graph, what is domain? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, 10 से पूरा आएगा ना. देखो ग्राफ ड्रॉ कर दो, टच होगा ना, देखो इधर टच हो रहा है, पूरा इधर आएगा. ये तो एक्सटेंड करेंगे ना, इतना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कितना भी कर सकते हैं, टच हो रहा है. सो व्हाट इज आंसर? आर लिख सकते हैं. डोमेन इज इक्वल टू आर. आर का मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. रेंज बताओ, रेंज. रेंज के लिए क्या करना चाहिए? बोलो, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल. देखो मैं इधर ड्रॉ किया, टच होगा ग्राफ में? हमारा ग्राफ क्या है? ये ग्राफ होता है, टच हो रहा है,
टच कर रहे, टच किधर से स्टार्ट होगा, जीरो से किधर तक, पूरा ऊपर तक इन्फिनिटी तक होगा. सो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, 0 to infinity. 0 included, not included? Included. 0 included. The answer is 0 to infinity. 0 to infinity. That's clear? Draw horizontal line that gives range. Vertical. अब देखो, अभी आगे काम आपको 10th क्लास में जो किया था, ठीक है, अभी डायरेक्ट बता रहे हैं, फिर बाद में हम क्वेश्चन दे देंगे आपको. ये I,0 से कुछ, ये क्या शेप है, पैराबोला. अगर है पैराबोला, ये किसकी इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक है ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शेप हमेशा क्या होता है, पैराबोला. कृतिका, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ग्राफ इधर एंड नहीं हो रहा है, पूरा जा रहा है इसमें. डोमेन के लिए क्या चीज, डोमेन के लिए अब एक्स कोऑर्डिनेट चेक करना, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, दैट इज आल्सो कॉल्ड रियल नंबर. ठीक है, ये 0,5 0,5 सॉरी 0,5 बाई कोऑर्डिनेट, बाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना. ठीक है, रेंज शिवांगी, रेंज है, क्या आंसर है, यस 5 टू इंफिनिटी. इसके लिए क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, जो हमारा ग्राफ है ये टच हो रहा है ग्राफ में, नहीं टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है, नहीं कर रहा, टच कर रहा है अभी भी, टच कब से करोगे, देखो इधर से स्टार्ट होगा टच, इसका नंबर क्या है, नंबर 5, फिर ऊपर उनका एंड नहीं है, कितना भी टच कर सकते. सो व्हाट इज द रेंज, 5 टू इंफिनिटी, 5 टू इंफिनिटी, 5 टू इंफिनिटी. अनीश, डोमेन तो माइनस इंफिनिटी कोमा इंफिनिटी, दैट इज रियल नंबर, रियल नंबर. Answer the range. हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर पहला है. मैं नंबर इधर से लाइन ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो क्या आंसर है, माइनस इंफिनिटी टू -2. -2 इंक्लूड है, बट इंफिनिटी हमेशा इंक्लूड नहीं होगा, इंफिनिटी इंक्लूड नहीं है. ये वाला कभी भी इंफिनिटी में और क्लोज ब्रैकेट मत लगा, क्योंकि इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, अननोन नंबर, इसलिए हमेशा ओपन ब्रैकेट लगा, कभी भी, ऑलवेज ध्यान रख दो. इंफिनिटी आए तो ऑलवेज कौन सा ब्रैकेट लगाना है, ओपन, ऑलवेज. ठीक है, ऑलवेज ओपन, बिकॉज अननोन नंबर कहीं पर एंड हो, अगर लिमिटिंग पॉइंट है तब दैट पॉइंट इज इंक्लूडेड है, तब क्लोज ब्रैकेट रहेगा. क्लियर है, क्लियर है. अननोन नंबर आए तो मत लगाना इस पे. ये कंसेप्ट क्लियर है सबको, ये क्लियर है, डाउट, अगर मैं क्वेश्चन दे रहे, ये क्लियर ना कंसेप्ट. फाइंड द डोमेन एंड द, पहले ये नोट कर दो एक बार, ये लिख दो ऊपर, ऊपर लिख दो,
domain and range. The x coordinate of a given relation, x coordinate of the given relation is called domain, and the y coordinate of the given relation is called range. The x coordinate of the given element is called domain, and the y coordinate of the given relation is called range. X coordinate of the given relation is called domain, and the y coordinate of the given relation is called range. Mark कर दो. A function defined a to b 1, 8, 2, 9, 3, 6, 4, 7. इसके बाद ये रिलेशन लिख दो. ये नहीं करना. R is equal to 1, 8 ordered pair. Write the ordered pair of the relation. 1 का इमेज कौन सा? 8. 2 का इमेज 9. 3, 6, 4, 7. इसका मतलब when x equal to 1, y equal to 8. When x equal to 2, y equal to 9. X equal to 3, y equal to 6. ठीक है. So domain is equal to x coordinate of the given relation 1, 2, 3, 4, and range y coordinate of the given relation 8, 9, 6, 7. Next, लिख दो codomain. All the elements of the set B is called codomain. All the elements of the set B. But the condition है relation is from A to B. If the relation is from A to B, then all the elements of set B is called codomain. Next. Done. एक बार हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं. एनसीईआरटी है. राइट क्वेश्चन. इसके बाद फिर हम ग्राफिकल अप्रोच वाला क्वेश्चंस कर रहे हैं. 88. राइट क्वेश्चन है क्या? Let A is equal to NCERT exercise 2.2 question number 1. इजी क्वेश्चन NCERT. इसके बाद हम स्टार्ट करना है मुश्किल वाला क्वेश्चन. ठीक है. A is equal to set 1, 2, 3 up to 40. ये डिफाइन दिया था. ठीक है. मीन्स ए का एलिमेंट्स अप टू 14 है. इसका ऊपर नहीं जा सकता. ठीक है. स्टार्टिंग कौन सा नंबर है? 1. Define a relation R
from A to A. देखो ये very important statement. A to A relation is from where to where? A to A. जो मैं पीछे जो किया था A to B. A to B. So इस क्वेश्चन के हिसाब से what is the codomain? A to A. So what is the codomain? A means ये वाला set. And A क्या given है क्वेश्चन में? 1 to 40. तुम्हारे कोडोमेन पूछो तो क्या आंसर है? 1 2 3 4 5 up to 40. A to A given a question. This is x coordinate and it is y coordinate, but both from A. Both from A. So all the elements of set A is called codomain. A to B. मैं दिया था A to B. इसमें A to A given है. ये वाला A. ठीक है? That is what codomain. A to A by R is equal to set x comma y such that 3x minus y is equal to 0, comma where x comma y belongs to A. इसका मतलब क्या है? X belongs to A, Y belongs to A. Write down its domain. Just write down its domain, comma codomain. Codomain तो क्लियर है? What is the codomain? And range. देखिए पूरा क्वेश्चन में बताऊँ कैसे. देखो लिसन मत करना, एक क्वेश्चन पर आओ. पहले चेक करना होगा डिफरेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. रिलेशन में कोऑर्डिनेट कौन सा फॉर्म चाहिए हमको? एक्स कॉमा वाई. रिलेशन क्या गिवन है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. देखो दैट इज रिलेशन. 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 implies y is equal to 3x. है ना? y इधर दिया तो 3x आ गया. ये रिलेशन है, ये रिलेशन है. क्लियर है? So we can write the relation roster form. So r is equal to, r का मीन roster form नहीं है, relation. r का मतलब क्या है? Relation. r is equal to, that is a relation. ठीक है? बताओ, when x is equal to 1, y is equal to 3. मैं x की जगह 0 पुट कर सकता है? x इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. क्यों? x बिलोंग्स टू क्या? a में क्या क्या चीज है? 1 to 14 तक नंबर है बस. सो 1 से स्टार्ट करके 14 तक पुट कर सकते हैं. ठीक है? तो मैं 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगा? 3. when x इक्वल टू 2, 6. when x इक्वल टू 3, when x equal to 4, 12. when x equal to 5, when x equal to 5, but ये possible नहीं. क्यों? when x equal to 5, y का वैल्यू क्या है? 15. but y क्या चीज है? belongs to a, but a में कितना है? 14 तक. तो पुट कर सकते हो? x equal to 5 पुट कर सकते. तो y की वैल्यू कितना आ रहा है? 15 आ रहा है. बट y कितना आ सकता है? 14 तक आ सकते हैं. सो इट्स नॉट पॉसिबल. सो कितना तक पॉसिबल होगा? 4 तक. आगे रिलेशन आ गया मेरे पास. अभी मैं क्या डेफिनेशन लिख के दिया था? डोमेन क्या है? तो मैंने किया व्हाट इज मीनिंग ऑफ डोमेन? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द रिलेशन. रिलेशन में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? सो व्हाट इज द डोमेन? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म है, that is equal to 1 2 3 4. ठीक है? नेक्स्ट, रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, डेफिनेशन, y कोऑर्डिनेट ऑफ द रिलेशन. रिलेशन इज ये, इसका y कोऑर्डिनेट 3 6 9 12. 3 6 9 12. And what is the codomain?
all the elements of the set B. इधर B कौन सा है? A to B. B कौन सा है? A क्या चीज है? 1 to 14. So what is the codomain? Codomain is equal to 1, 2, 3, etc. up to 40. तो ये एनसीईआरटी का टाइप क्वेश्चन यही होता है. आगे समझ क्लियर? बट एग्जाम में कभी भी नहीं आती इस तरह से क्वेश्चन. ठीक है, क्लियर है? ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज, ओनली फॉर द कॉन्सेप्ट. क्लियर? ठीक है, राइट ऑन लिख दो. क्लियर क्वेश्चन? Any doubts? And the next question. Now question first, find the relation by using the given condition. ठीक है, फिर चेक करना उसका x coordinate क्या, that is domain, and y coordinate, that is range, and all the elements of set B, that is codomain. That's no relation. इसलिए क्या बोला मैं? All the elements of the set B, not relation, not in relation. ठीक है, next question. Define a relation. Define a relation. Second question. R on the set n. N का मतलब क्या है? Natural number. N Of natural numbers. By R let set x comma y x comma y such that y y equal to plus 5. Huh? X plus 5. x plus 5. X is a natural number less than 4. X is number Less than 4. less than 4 X and y belongs to n. and x comma y belongs to n. ये relation. Question में find the domain. First part, find domain. फिर range. और इसमें भी लिख दो codomain. नहीं पूछा फिर लिख देना. रोस्टर फॉर्म तो बिना रोस्टर फॉर्म से नहीं होगा, वरना रोस्टर फॉर्म फाइंड करना. क्वेश्चन लिख दो, फाइंड द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. फर्स्ट write down the given relation in the roster form. Jesh, write down the given relation in the roster form. Given a y is equal to x plus 5 given. So what is R? इसमें x की वैल्यू क्या क्या आ सकता है? What are the values of x? नेचुरल नंबर माइनस आ सकता है. जयशल पार्थ, what are the values of x here? 1 2 3 4 नहीं आ सकते. क्यों? नंबर लेस देन 4. x is a natural number less than 4. तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकते हैं? 1 2 3. ये तीन नंबर पुट कर सकते हो. सो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. when x is equal to 1, y 6. when x is equal to 2, y 7. when x is equal to 3, y
8 और कर सकते इसमें 4 कर सकते नहीं कर सकते क्यों लिमिटेशन है x की वैल्यू पूरा नहीं करना आपको लिमिटेशन है क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 2 3 है ना 4 नहीं कर सकते लेस देन 4 दिया था लेस देन इक्वल टू नहीं दिया था ओनली लेस देन 4 नाउ इसका क्या चेक करना पड़ता है x कोऑर्डिनेट व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस रिलेशन 1, 2, 3 what is that domain what is range 6, 7, 8 and what is the codomain what is the codomain natural number all natural number है all natural number है I don't पहले लिख दो domain of the function set 1 2 3 range of the function 6 7 8 codomain that is equal to n natural numbers. Set of natural numbers. Clear? Yeah. Clear? Next. A is equal to Set 1, 2, 3, 5. set 1, 2, 3, 4, 5. 4, 1, 2, 3, 5. 5. B is equal to Set 4, 6, 9. 4, 6, 9. Finally, Define a relation from A by R. देखो R from A to B. देखो एक यूनिट A to B. Underline कर दो A to B. So what is the codomain? B. What is B? 4, 6, 9. 4, 6, 9. So codomain clear is 4, 6, 9. by R By R equal to X, Y. X, comma Y such that The difference between X and Y. the difference between X and Y Is 4 is 4 and X belongs to A, Y belongs and X belongs to A, Y belongs to B. Write R across the Write R in roster form, hence find लिख दो domain, range and codomain. तो सब में फाइंड कर दूंगा ठीक है लिख दो क्वेश्चन पूरे hence find domain, codomain and range. Order very important देखो x y x coordinate first फिर y coordinate फिर दिया था x belongs to A, y belongs to B, फिर दिया था difference between x and y is odd. तो हमें 1 के साथ कौन सा नंबर लेना ऑड के लिए 1,4 आएगा क्योंकि 4 - 1 क्या आंसर है 3 ऑड है ऐसा नो ले रहा है सो फर्स्ट रिलेशन कौन सा आएगा देख दो r is equal to 1,4 1 6 के साथ नंबर आएगा यस क्यों 1,6 6 - 1 क्या आंसर आ रहा है 5 सो 1,6 भी आए और 1 9 के साथ नॉट पॉसिबल क्यों 1 9 9 - 1 कितने 8 दैट इज इवन नंबर
सो 1 के साथ 2 ही होगा, और 2 के साथ बताओ कौन सा आएगा? 2,4 नहीं आ सकते, 2,6 नहीं आ सकते, 2,9 पॉसिबल है, 3,4 यस, 3,6 पॉसिबल है, क्यों? 3 है, 6 माइनस 3 है, ऑड नंबर है। 3,9 नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट 4 सॉरी 5 5,1 4 5,6 और 5,9 पॉसिबल नहीं। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अभी ये रिलेशन का क्या चेक करना आपको? एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज कॉल्ड डोमेन, और वाई कोऑर्डिनेट रेंज। सो व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट हियर? 1, रिपीटेशन मत करना, देखो 1,1 ऐसे मत करना, सेट में 1 टाइम्स करना चाहिए। देखो 1 2 है, 3 है, 5 भी। So I don't domain of the function that is equal to 1 2 3 5 range 4 है, 6 है, 9 है, बाकी तो रिपीटेशन मत लेना चाहिए, एक ही टाइम्स करना। 4 6 कोडोमेन, सेम आ रहा है। इस वाले केस में कोडोमेन एंड रेंज बोथ आर इक्वल, कोडोमेन एंड रेंज बोथ आर इक्वल, बिकॉज हमें क्या बोला था? रेंज इज ऑलवेज a subset of codomain, that itself is a subset, na? Null set, and that is set itself is a subset of every set. पढ़ा ना आप लोग? ठीक है, this is answer. Next The figure shows I don't, the figure shows a relationship between एक काम करते हैं ना, exercise 2 remaining questions homework में करते हैं, remaining questions homework पे। अब ये क्वेश्चन लेते हैं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं। Find the domain and the range of, ये सब important questions है, ठीक है? Find the domain and the range of uh, 2x square minus 5x plus 3. टेंथ क्लास में ग्राफिकल मेथड का अप्रोच बता दिया, पॉलिनोमियल चैप्टर में आता ना, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। एक क्वेश्चन पूरा बता दूंगा, एक बार रिवाइज करवा दो 10th क्लास का, ठीक है? लिसन, होमवर्क क्लियर है सबका? एक्सरसाइज 2.2 रिमेनिंग क्वेश्चंस। लिसन, पहले चेक करना है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड equation of the quadratic equation? Standard equation of the quadratic equation is ax square quadratic polynomial bx plus c, ठीक है? ax squared plus bx plus c. What is the quotient of x square? A. If a greater than 0, then the given graph is concave upwards. याद है 10th क्लास में बता, then the graph is parabola लिख सकते ना, then the parabola is concave upwards.
मीन्स ये शेप आएगा, कॉनकेव अपवर्ड, ए ग्रेटर देन 0, upward, concave upward, concave upward. If a less than 0, then the parabola is, note कर दो, is concave downward. ये शेप आएगा, ये डिसाइड करने का मेथड है, ठीक है। और ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट याद है 10th क्लास में जो बताती है, माइनस बी बाई 2a कोमा माइनस डी डिवाइड बाई 4 है ना 10th क्लास में। माइनस लिख दो इधर, ये कोऑर्डिनेट आएगा माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a